हाय, आई एम सोनप्रिया। आज मैं बात करने वाली हूँ उस प्रॉब्लम की जो हर एक एस्पायरेंट फेस करता है बट इट इज नॉट डिस्कस्ड मच। जैसे अच्छी कोचिंग के लिए बड़े शहर जाना और उसके लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट। आई हैव फाउंड अ सोल्यूशन इन सुपर कोचिंग जहां आपको पढ़ाएंगे 20 प्लस सुपर टीचर्स फ्रॉम लुकमन आईएएस, आजाद आईएएस एकेडमी एटसेट्रा, जिन्होंने 3000 प्लस सिलेक्शंस करवाए हैं। GS Foundation के साथ साथ optional courses and NCERTs will be taught by experienced teachers like Salamuddin Ansari sir. Along with this, 500 plus mock tests, notes, daily current affairs, thousands plus live classes. अब इन सब के लिए आपको लाखों नहीं खर्च करना पड़ेगा because you can get all this under just rupees 25,000. To get 7 days free access to all these features, use our code DKT7. सुपर कोचिंग को अपना परमानेंट पार्टनर बनाने के लिए यूज अवर कोड DKT20 एंड गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. So now enroll in super coaching for cracking UPSC Civil Services exam. #Delhi Machal. Hello everyone, my name is Rajat Ubhaikar and I have achieved AIR 49 in the UPSC Civil Service exam 2020. I'm doing this video to share some strategy, some resources and some general tips which may be useful for UPSC aspirants. To begin with, I would like to give a brief introduction about myself. I was brought up in Mumbai. I did my education at IIT Kanpur. I studied electrical engineering. After that, I worked in a management consultancy for a year, after which I joined journalism. I studied print journalism at the Asian College of Journalism. And after that, I worked for around 3 years in a business magazine, Outlook Business in Mumbai. And this was my 4th attempt. I also got AIR 378 last year. And I hope the tips and strategy and resources that I share will be useful. To begin with, I would like to cover, because most of my preparation happened at home. I did self-study. I did not undergo coaching. I think I would like to share some general tips for aspirants who are preparing from home and who often struggle with what resources they should use to prepare effectively. I would like to share some of the resources I used during my preparation journey. So firstly, for daily current affairs, which is a crucial part of the UPSC, I used to refer to the Hindu, Indian Express, and I also used to refer to Business Standard for business news. This was my basic for whatever newspapers I used to refer to. Apart from that, I also used to refer to Insights IAS for their daily current affairs. And among newspapers, if you have time to only read one, I would suggest you choose Indian Express. It is currently tailor-made for UPSC aspirants. उसमें जैसे बहुत सारे एक्सप्लेन्ड सेक्शन हो गया, उनका कवरेज ऑफ इवेंट्स, सब कुछ बहुत ही रेलेवेंट है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए. सो आई वुड सजेस्ट यू रेफर टू दैट. और जहाँ तक डेली करंट अफेयर्स की बात हो गई, एक रिसोर्स रखिए अपना, एक ही सोर्स रखिए फॉर डेली करंट अफेयर्स. जैसे मैंने अपना इनसाइट्स IAS रखा था, मुझे वो काफ़ी यूज़फुल लगा. हर रोज़ मैं उसकी डेली क्विज सॉल्व करता था, डेली उसके करंट अफेयर्स के पढ़ता था. और क्विज सॉल्व करने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो 5 में से 4 सही हो गए. ऐसे यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ओवर टाइम. तो डेली करंट अफेयर्स की ये बात हो गई. और प्रीलिम्स और मेंस के पहले आई यूज्ड टू रेफर टू विजन IAS का कंपाइलेशंस. दे हैव सम नाइस सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशंस, तो मैं वो रेफ़र करता था. उसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ता था, जो भी मुझे नया लगता था इन्फॉर्मेशन वो मैं यूज़ करता था. उसको छोड़ के जहाँ तक इंडियन पॉलिटी की बात आती है, सबसे यूज़फुल M लक्ष्मीकांत है. दैट इज़ अ बाइबल. उसके बियॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली. बट आपको अगर थोड़े सप्लीमेंट्री रिसोर्स यूज़ करने हैं तो यू कैन चेक आउट क्लियर IAS के बुक्स. देयर इज़ वन ऑन इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑन इम्पॉर्टेंट एक्ट्स. तो इसमें आपका थोड़ा पॉलिटी का एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और जहाँ तक बात है इंटरनेशनल अफेयर्स की, मैंने जैसे सबसे इंट्रोडक्टरी बुक जो पढ़ा था इस पर, वो पैक्स इंडिका था बाय शशि थरूर जी. एंड वो मुझे बहुत ही एक अच्छी बुक लगी इन द सेंस एज एन इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट. उसके आगे आप अपने सोर्सेज वेरी कर सकते हैं. आप विकीपीडिया तक भी यूज़ कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन हर ईयर आते ही है और
काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इस सब्जेक्ट की ब्रॉड समझ आप ग्रास्प एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक सवाल आता है इकोनॉमी का, श्रीराम श्रीरंगम की इंडियन इकोनॉमी किताब है, विच इज़ लूसिड कॉम्प्रिहेंसिव, और वो आपको एक अच्छा ग्राउंडिंग दे देगा इन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड थियोरी, एज वेल एज उसके जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो दैट इज़ वन बुक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और इकोनॉमी में जैसे काफ़ी ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो उसमें आप न्यूज़पेपर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको रेगुलरली रेफ़र करते रहिए। और जहाँ तक सवाल आता है एथिक्स का, एथिक्स में भी जैसे लेक्सिकॉन है, एक बहुत ही काफ़ी अच्छी किताब है फॉर एज एन इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। उसके बाद आप अपना खुद खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में। जैसे मैंने वही किया था, मैंने हर जो भी कीवर्ड है सिलेबस में मेंशन, उसके रिलेशन में मैंने उसके डेफिनेशंस बनाए थे। उसके डेफिनेशंस आपके फिंगर टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टू थिंक कि क्या डेफिनेशन होगा। तो ऐसे ही आपके एक सक्सेंट नोट्स होने चाहिए एथिक्स के लिए, जो कि आप लास्ट मिनट पर रेफ़र करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बात हो गई एथिक्स की। इसको छोड़ के जोग्राफ़ी में एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है PMF IAS। इसमें आपका फ़िज़िकल जोग्राफ़ी भी कवर्ड है, एज़ वेल एज़ इंडियन जोग्राफ़ी जो इंडिया रिलेटेड है। तो फिज़िकल जोग्राफ़ी में स्पेशली टेक्स्ट बुक्स में जैसे मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता था समझना, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशंस होते हैं, आपको समझना है कि प्लेट्स कैसे मूव कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें जो PMF IAS का वेबसाइट था वो मुझे बहुत यूज़फुल लगा। मैंने फ़िज़िकल जोग्राफ़ी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वहीं से एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर की। मैंने ना NCERT ना और कुछ रेफ़र किया था, तो मैं आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड ये वाला रिसोर्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक काफ़ी अच्छी है, और उसको छोड़ के CCRT जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन आर्ट एंड कल्चर का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कवर किया है, बहुत ही लूसिड और यूज़फुल वे में। तो वो भी एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की किताब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपके पास मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज में ना जाए, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें, फोकस्ड रखें, और जो भी आपने सीखा है अपने सोर्सेज से उसको आप नोट्स में कन्वर्ट करके एक डाइजेस्टिबल फॉर्म में रखिए, ताकि आप लास्ट मिनट पर रेफ़र कर सकें। तो नोट्स का आप डोंट गो ओवरबोर्ड जहाँ तक नोट्स बनाने का सवाल आता है, क्योंकि आपका नोट्स का मेन पर्पज़ यही है कि आपको एंड में वो रेफ़र करने हैं। तो सक्सेंट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और यूज़फुल होने चाहिए। तो ये टॉपिक हो गया ओवरऑल, कैसे आप घर पे बैठ के क्या रिसोर्सेज यूज़ करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। अब क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मेरे इस साल हाईएस्ट नंबर आया हिस्ट्री ऑप्शनल में 301, तो मैं ऑल्सो थोड़े सजेशन देना चाहता हूँ ऑन कैसे आप GS के लिए हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। उसमें जैसे प्रीलिम्स में स्पेशली बहुत सारे सवाल आते हैं, मेंस में भी उसका रेलेवेंस है काफ़ी। तो जैसे ट्रेडिशनल जो तरीका था हिस्ट्री ऑप्शनल का, वो बिपिन चंद्रा की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो स्टैंडर्ड बुक है, वो अभी भी मैं रेकमेंड करूँगा आप पढ़िए टू गेट अ इंट्रोडक्टरी सेंस ऑफ द सब्जेक्ट। उसको छोड़ के 2-3 किताब है जो आई थिंक विल बी वेरी यूज़फुल, क्योंकि हिस्ट्री के जो सवाल है वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, और एनालिटिकल उसकी जो नॉलेज की जो डेप्थ वो डिमांड कर रहा है वो ज़्यादा है। इसीलिए मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ज़रूर पढ़िए। वो बाइबल है मॉडर्न इंडिया के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए तो इट इज़ एब्सोल्युटली मस्ट, बट अगर आपका बस GS के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये किताब एक बार पढ़ के देखिए, क्योंकि इसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग आएंगी ओवरऑल ऑफ मॉडर्न इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, कैसे उनका रूल इवॉल्व हुआ, कैसे नेचर चेंज हुआ, क्या आइडियोलॉजीज थी, ये सब काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। जैसे आप प्रीलिम्स में जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, तो उसमें हिस्ट्री में अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीलिम्स में। और क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो ये किताब आपको वो बैकग्राउंड नॉलेज देगा जिससे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको छोड़ के अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडिया करके किताब है बाय BL ग्रोवर एंड अलका ग्रोवर। ये किताब भी काफ़ी यूज़फुल है ब्रिटिश इंडिया मॉडर्न इंडियन पीरियड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के गवर्नर्स के पॉलिसीज़ से लेके एंग्लो मराठा वॉर्स, जो कि सब आता है मॉडर्न इंडिया के अंदर, पर ये थोड़ा अंडर एक्सप्लोर्ड, एस्पिरेंट्स काफ़ी इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से कवर्ड नहीं है इन से बिपिन चंद्रास बुक एल्सवेयर।
और एल्सवेयर। तो इसमें ये किताब आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज बेस बना सकती है, तो इसको भी ज़रूर रेफ़र कीजिए। और ये दो किताब को छोड़ के मैं कहूँगा कि आप हिस्ट्री की जब तैयारी करते हैं तो एक ओवरऑल ब्रॉड सेंस बनाइए, ट्राई टू फाइंड इंटरलिंकेजेस बिटवीन वेरियस टॉपिक्स। एक पीरियड में डेवलपमेंट्स कैसे दूसरे पीरियड में डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ये एक ब्रॉड एक सेंस बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल होते हैं। इस पे आपकी बस फैक्चुअल नॉलेज नहीं टेस्ट होगी, इन मेंस काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक मज़ा लीजिए उस हिस्ट्री का, क्योंकि उसमें एन्जॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस अपनी समझ बनाने के लिए। तो अभी हम आते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल पे, और मैं अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी और सोर्सेज शेयर करना चाहूँगा जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके साथ। और मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है, इन द सेंस इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप है विद GS1 एज वेल एज प्रीलिम्स। और इसमें आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड नॉलेज चीज़ों की मिल जाती है जो कि एसए में भी काम आ सकती है, एथिक्स में भी आती है। तो ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शनल है ये, क्योंकि इसमें ओवरलैप बहुत है। और उसको छोड़ के मैं जैसे अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँगा, सबसे पहले शुरू करते हैं मैप्स के साथ। तो मैप्स में मैप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आपके पेपर 1 में जो मार्क्स वो डिटर्मिन होते हैं मोस्टली मैप्स से। और तो इसके लिए मैंने 2 सोर्सेज रेफ़र किए थे। एक है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मैप्स, उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव काफ़ी सारे मैप्स बनाए हुए हैं पीरियड वाइज, सेक्शन वाइज एंड सो ऑन, वो यूज़फुल है। उसको छोड़ के स्पेक्ट्रम्स हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया ये किताब है। इसमें बहुत सारे साइट्स हैं जो कि रिलेटिवली ऑब्सक्योर भी हो सकते हैं, पर इसमें आपको, क्योंकि यूपीएससी के जो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मैप क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा ऑब्सक्योर बनते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने सोर्सेज थोड़े डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्शन के लिए। जो क्लासिक्स पूछते थे सवाल वो अभी बंद हो गए काफ़ी। जैसे एंशिएंट और मीडिवल इंडिया के साइट्स पूछ रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, तो इस वाले बुक में स्पेक्ट्रम्स हिस्टोरिकल एटलस ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको यूज़फुल रहेंगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मैप्स पे बस इन सोर्सेज पे मत रिलाई कीजिए, आप अपने मैप्स खुद बनाइए, उसको डिवाइड कीजिए, जैसे बुद्धिस्ट पीरियड के एसोसिएटेड मैप्स, पेलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड, जैसे भी यूपीएससी पूछता है सवाल ओवर द ईयर्स, वैसे आप एक सेक्शंस बना के मैप अपने खुद से बनाइए, उसको खुद मार्क कीजिए, तब जाके आपको सही से याद रहते हैं, और वो साइट्स भी आपको उस लास्ट मिनट पे रिकॉल भी होते हैं। तो खुद के मैप्स बनाइए, इसमें 2-3 दिन का टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूशल कि आपको पेपर 1 में अच्छे नंबर लाने के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसको छोड़ के जैसे अभी हम एंशिएंट इंडिया पे आते हैं, तो एंशिएंट इंडिया में उपिंदर सिंह की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया इज़ द बाइबल, इस बहुत ही अच्छी किताब है ऑन एंशिएंट इंडिया। इसमें थोड़े सेक्शंस हैं जो कि थोड़े इररेलेवेंट हो सकते हैं फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली प्री हिस्टोरिक इंडिया के रिलेटेड, उनको आप स्किप कर सकते हैं या स्किम थ्रू कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये किताब बहुत ही वेल प्रोड्यूस्ड भी है, बहुत सुंदर पिक्चर्स है इसमें, और हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट जगाएगा भी है, और आपको इतने सारे एनालिटिकल इंसाइट्स देगा इनटू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि ये एक एब्सोल्यूट मस्ट रीड किताब है। बट इसमें आप याद रखिए, क्योंकि किताब थोड़ी मोटी है, थोड़ी बड़ी है, इसमें आप खुद के नोट्स बनाते रहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं। जो भी आपको एक इंपॉर्टेंट नया फाइंडिंग मिलता है, नया कोई एक इंसाइट मिलता है, एक फैक्ट मिलता है, उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने नोट्स बनाइए, ताकि आप बाद में इसको रेफ़र कर सकें। उसको छोड़ के RS शर्मा की इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, दैट्स ऑल्सो गुड इंट्रोडक्टरी बुक, नॉट नेसेसरली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, बट अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इग्नू के कुछ नोट्स जो कि अवेलेबल है वो बहुत यूज़फुल हैं, पर इसमें सिलेक्टिव रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा रेलेवेंट नहीं है। तो आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए, और फिर डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आपको लगता है आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप इग्नू के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, या और जैसे उपिंदर सिंह की किताब है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी मत बनाइए, ये 2-3 सोर्सेज, A.L. बशम की द वंडर दैट वाज इंडिया आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूज़फुल है, उसको आप पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। तो ये सोर्सेज हो गए एंशिएंट इंडिया के। मीडिवल इंडिया पे आते हैं, और मीडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा के 2 किताब है, दे आर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी कुछ कवर कर लेते हैं वो इन एज फार एज द सिलेबस इज़ कंसर्न। इसको छोड़ के आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर एंशिएंट एज वेल एज मीडिवल, बट मीडिवल में स्पेशली आई फाउंड देयर नोट्स यूज़फुल, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिकली उन्होंने हर पीरियड के जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स है उसको कंसाइज वे में लिखा है,
तो वो भी एक सप्लीमेंट्री रिसोर्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे लास्ट अटेम्प्ट और दिस अटेम्प्ट में मुझे सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मटेरियल में जो वैल्यू एडेड मिला, दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन इम्प्रूविंग माय मार्क्स। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। और जैसे अगर और भी आपको सोर्सेज यूज़ करने हैं तो इरफान हबीब की मीडिवल इंडिया किताब है, जो कि बहुत इंसाइटफुल है इन टर्म्स ऑफ से टेक्नोलॉजी, रिलीजन, साइंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। तो ये छोटे छोटे जैसे यहाँ पे टॉपिक्स से आपको लगता है जैसे बाकी किताबों में अच्छे से कवर नहीं किया है, वो आप इन किताबों से रेफ़र कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद समझिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पे आपको लैकिंग लग रहा है और कौन सी किताब कहाँ पे ऐड कर सकती है। तो इसमें आपका खुद का इनिशिएटिव भी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है कि मुझे किस किताब का क्या पोर्शन पढ़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कि ये आप मीडिवल के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया पे आते हैं तो जैसे मैंने कहा, शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन इज़ एब्सोल्युटली मस्ट रीड। वो बाइबल है मॉडर्न इंडिया के लिए। और उसको छोड़ के इशिता बनर्जी दुबे की एक किताब है विच इज़ यूज़फुल इन पार्ट्स, कुछ टॉपिक्स का अपना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। वो अच्छी यूज़फुल किताब है। और अ न्यू लुक एट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय बी एल ग्रोवर इज़ ऑल्सो अ मस्ट रीड इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल। कि उसमें चाहे वो वॉर्स हो गए, चाहे इंडिविजुअल गवर्नर्स के पॉलिसीज़ हो गए, ये सारे पे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया हुआ है सारे के सारे पॉइंट्स। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल किताब है। मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार भी एक बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली फॉर द पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1947। इसमें जो कांग्रेस पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व किया, क्या क्या जैसे लेबर मूवमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारे जो सबऑल्टर्न एस्पेक्ट्स है स्पेशली इसको बहुत अच्छे से कवर किया। और इसमें किसके जो एनालिटिकल इंसाइट्स है वो बहुत यूज़फुल है फ्रॉम एन आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये किताब भी मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और इसको छोड़ के ऑफ कोर्स इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक ग्राउंडिंग टेक्स्ट है, ये शायद पहली किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। वो ज़रूर पढ़िए। और उसको छोड़ के इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो कि बिपिन चंद्रा की ही है, उसमें आई थिंक वो बहुत रेलेवेंट है फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, क्योंकि उसमें जो जो टॉपिक्स चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट मैच करते हैं विद द सिलेबस टॉपिक्स। तो उसका बहुत ही कोरिलेशन है उस चैप्टर में। वो पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए कि सिलेबस के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से आपको कवर करने हैं, और बस उतना ही पढ़िए। तो मॉडर्न इंडिया आपका इसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स भी देख सकते हैं एज सप्लीमेंट्री रिसोर्स, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये सब टॉपिक में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है या मुझे और पढ़ना है, तो वहाँ पे आप इसके नोट्स देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जैसे नॉर्मन लॉ के कुछ चैप्टर्स बहुत यूज़फुल हैं, जैसे फैशिज्म इन इटली हो गया। और कुछ चैप्टर्स पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी है, उसमें इरेलेवेंट भी है। तो उस पर पूरा बुक पढ़ने में आप टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। पूरे टाइम आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ पे ये चीज़ फिट होती है इन द सिलेबस, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, क्योंकि टाइम की कमी होती है और किताबों की कोई कमी नहीं है। तो आपको अच्छे से अपना टाइम प्लान करना है। तो जैसे नॉर्मन लॉ में कुछ चैप्टर्स हैं यूज़फुल, उसको आप पढ़िए, बाकी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के नोट्स अगेन आर वेरी यूज़फुल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय रंजन चक्रवर्ती, इसमें काफ़ी अच्छे कवरेज है ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वाला पीरियड, और कुछ एस्पेक्ट्स जहाँ जैसे अमेरिकन सिविल वॉर हो गया, रशियन रेवोल्यूशन, ये कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे से कवर किए हैं। तो ये किताब भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसको छोड़ के एल मुखर्जी की एक पुरानी सी किताब है, उसमें भी नेपोलियनिक पीरियड और पोस्ट नेपोलियनिक पीरियड पे अच्छे एनालिटिकल इंसाइट्स मिलेंगे। तो वो पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखिए कौन से चैप्टर्स आपको रेलेवेंट लग रहा है वो पढ़िए। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड बाय अर्जुन देव, वो भी काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के पीरियड्स के लिए। कैसे जैसे कंट्रीज़ के क्या अलायंसेस बने, वॉर कैसे इवॉल्व हुआ, किसकी क्या पोजीशंस थी। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए वो रेलेवेंट है, वो किताब आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, आपको एक अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज देगा वो। और स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड में भी, जैसे कहाँ पे क्या रेवोल्यूशन हुआ, क्या उसके कॉजेज़ थे, क्या बैकग्राउंड था, इसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा इससे। तो ये बात हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री की। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाइए। इसमें आपका नोट मेकिंग स्किल इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, कि लास्ट मिनट एग्ज़ाम के पहले आपको वही चीज़ रेफ़र करनी है। कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और काफ़ी अनमैनेजेबल लग सकता है, बट अगर आप सिस्टमैटिकली नोट्स बनाएं, सब टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, कंसाइज नोट्स बनाएं, देन इट इज़ वेरी मच डूएबल।
आप जो आपको 5 दिन मिलते हैं मेंस के वक्त, उसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। आखिरी में मैं टच करना चाहूँगा इंटरव्यू पे, क्योंकि इंटरव्यू आपका रैंक डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। जैसे इस साल मेरे 206 नंबर आए, और ये अच्छे मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मुझे रैंक टॉप 50 रैंक देने में। तो इंटरव्यू को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका लिस्ट में नाम ना डिसाइड करे, पर आपका रैंक ज़रूर डिसाइड करेगा। तो इसके लिए मैं आप ये कहूँगा कि जैसे लास्ट ईयर मेरे 168 आए थे, इस साल मेरे 206 आए। तो मैंने लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा इम्प्रूव किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मेरा डैफ फिल करने में। जैसे डैफ फिल करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही कॉन्शियसली फिल करना है। जैसे आपके हॉबीज़ हो गए, जो भी है आपको ये आपकी जेन्युइनली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ओवरऑल आपका डैफ। और इसमें अपने हॉबीज़ वगैरह बिल्कुल कैजुअली मत भरिए। तो लास्ट ईयर शायद मैंने कुछ ज़्यादा हॉबीज़ लिख दी थी, मेरी हॉबीज़ काफ़ी थी, तो मैंने लिख दिया सोच के कि ये अच्छा होगा, बट आई थिंक दैट वेंट अगेंस्ट मी एट सम लेवल। इस साल मैंने अपने हॉबीज़ को मिनिमम रखा, जो भी एकदम मैं हर रोज़ मतलब ऑलमोस्ट हर रोज़ फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैंने लिखी बस। और दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट चेंज आई मेड। दूसरा ये कि आपको इंटरव्यू में आपका एटिकेट और आपका डिमीनर, यू हैव ऑलवेज हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। आपको दो यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम, फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन इवन, बट आपको ये याद रखना है कि दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड डिस्टिंग्विश्ड पीपल हु नो मच मोर देन यू विल। एंड सो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो चीज़। जैसे इस बार मैंने जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उस वक्त मैंने बस मैं यूजुअली थैंक यू बोल के मैं उठ जाता था। इस बार मैंने कॉन्शियसली बोला कि थैंक यू मैम, इट वाज अ प्रिविलेज इंटरैक्टिंग विद द बोर्ड। और ये कह के मैं निकल गया। और वहाँ पे मैंने उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन में चेंज देखा, उनके डिमीनर में चेंज देखा, ये आई थिंक काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यूज़ इन सच फॉर्मल सेटिंग्स। तो आपके एटिकेट, आपके डिमीनर, इस पे आप काम कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी आई एम श्योर इज़, यू हैव टू जस्ट बी योरसेल्फ। आपको कुछ दिखावा नहीं करना है, आप जैसे हो वैसे रहिए। पोलाइटली आंसर कीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो आंसर कीजिए। और बस बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि दे आर वेरी सीनियर पीपल, उसको आप उस एस्पेक्ट को बिल्कुल मत भूलिए। और यही मैं कहूँगा इंटरव्यू के लिए, आप जो भी आपके हॉबीज़ हैं उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। मॉक इंटरव्यूज़ ढेर सारे दीजिए। इसमें भले ही द फीडबैक मे नॉट ऑल बी रेलेवेंट, ऑफन इट इज़ नॉट यूज़फुल। सारा फीडबैक आप दिल पे मत लीजिए मॉक इंटरव्यूज़ में, क्योंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस और बिलीफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू में अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो अगर आपको कोई मीन चीज़ें कह रहा है, कोई चीज़ आपको इररिलेवेंट लग रहा है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। बट मॉक इंटरव्यूज़ बस इसलिए दीजिए ताकि आप खुद को बेटर समझ सके, आप खुद के रिएक्शंस को बेटर समझ सके। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर देते हैं, और उस आंसर को आप कैसे रिफ़ाइन कर सकते हैं, ये ओवर टाइम आप मॉक इंटरव्यूज़ में कर सकते हैं। ताकि जब फाइनल डे आपका आता है तब आप एकदम ही पॉलिश्ड और प्रिपेयर्ड हैं अपने जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के रिगार्डिंग। तो ये आप ज़रूर कीजिए मॉक इंटरव्यू के लिए। और ओवरऑल मैं आपको बस एंड में थोड़े जनरल टिप्स देना चाहूँगा जो इससे आप अपना प्रिपरेशन मैनेज कर सकें, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही डिमांडिंग हो सकती है, बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग हो सकती है, ड्रेनिंग हो सकती है। तो इसमें आपको अपना इमोशनल हेल्थ और इमोशनल रेजिलियंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए कि जो भी आपको एंग्जाइटी होती है, जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है इस एग्ज़ाम के रिलेशन में, वो बस दो कारणों से होता है। या तो आप अपने पास्ट पे ड्वेल कर रहे हैं, आप बस पास्ट में क्या हुआ है वो सोच रहे हैं, या तो आप फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रहे हैं। ये दो चीज़ों के कारण ही आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस आता है। तो आप जितना हो सके फ़ोकस कीजिए, यू लिव इन द मोमेंट, जो कि कहते हैं, करना कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ। बट आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आप जो भी आपका एक डेली टारगेट बनाइए कि मुझे आज इतना पढ़ना है, मुझे इतने ये चैप्टर्स कवर करना है, ये पोर्शन कवर करना है, और बस उस पे फ़ोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि यार लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स में नहीं निकला, मैं इस बार निकाल पाऊँगा कि नहीं। ये सेल्फ डाउट तभी आता है जब आप पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं। आप बस प्रेजेंट में फ़ोकस्ड रहिए, अपने मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, इस प्रोसेस और जर्नी को एन्जॉय कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप डेली टारगेट्स बनाइए, और एक रफ़ ऐसे ब्रॉड वीकली टारगेट्स भी बनाइए, जिससे आप ट्रैक कर सकें कि मैंने जो जो सिलेबस कवर किया है वो काफ़ी है कि नहीं। कि बिफोर द मेन से अराउंड 1 महीने पहले तक मेरा ओवरऑल एक मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सिलेबस कर लिया है। कोर्स इसमें सीखने को हमेशा नया कुछ रहता है, ये सिलेबस कभी एक्चुअल में ख़त्म नहीं होता है, बट आपको एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं वाया
डेली एंड वीकली प्लान्स जो कि आपको मोटिवेटेड भी रखता है, वरना कई कभार बहुत इजी हो जाता है टू बी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतना कुछ पढ़ना है, और फिर मोटिवेशन अफेक्ट हो जाता है जब आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। तो ये ओवरवेल्म वाली फीलिंग को कंट्रोल में रखने के लिए ये डेली और वीकली ट्रैकर्स बहुत हेल्प करते हैं, एटलीस्ट मुझे किए थे ज़रूर। और आप ऑल्सो लोगों से बात करिए, जो भी आपके पीयर ग्रुप है उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे एडवाइस सीख करते रहिए, उन जो भी आपको लगता है कि हु आर सीरियस कैंडिडेट्स उनके साथ रहिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, ये भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।